were not good, and they were not allowed to participate your study in history in ganas or in meetings. There were many rights were not given to the women. There were the some dowry system, domestic violence. This happens in our society. So today's scenario is changing or have changed. Or today, there is the better situation of women compared than earlier. They have a lot of legal rights. Legal means those given by the constitutional. And in legal rights, so women have a lot of rights today. In class 6, there was the one example you are studying, New Hindu Succession Act. If you are reminding your previous class, so you are studying 2006, uh, 2005. 2005. So Hindu Succession Act, you know what happens in this act, beta? What was the right given to the women? Anyone? Right to vote. No. Right to vote. Even in your civics book, what was the rights given in this act? Hindu Succession Act 2005. Sir, in this act, the right was given that every woman in the property, the woman will get a part. Yeah, very good, Subham. So in this property rights was given to the woman. Earlier time, no property right. So through this, the woman got the property rights from husband or maybe father's property. So it will be equally among share the all children of family. So this rights was given to the woman. So now today different situation of women. Today co-education system is started जहाँ पे दोनों गर्ल्स एंड बॉयज के एक ही स्कूल हुआ करते हैं कुछ चलते हैं अर्ली टाइम एजुकेशन राइट्स नहीं होते थे और मे बी द नॉट अ राइट्स वी कांट से द राइट्स बट एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी देयर वर मेनी गर्ल who left the school before completing their educations or child marriage also one practices और डोरी सिस्टम दहेज जिसको बोला जाता है तो दिस सिचुएशन हैज चेंज गवर्नमेंट हैज मेक द लॉज फॉर दैट गवर्नमेंट हैज बैन दिस सिचुएशन तो देर आर मेनी सच प्रैक्टिसेस एज बैन बाय द गवर्नमेंट हियर तो दिस चेंजेस इज नॉट हैपन्स विद इन द सिंगल डे हम वुमेन्स मूवमेंट में ये स्टडी करेंगे कि जो ये चेंजेस हुआ है दिस चेंजेस हैपन्स इज नॉट विद इन द सिंगल डेज दिस हैपन्स आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल एक बहुत लंबा स्ट्रगल इसके लिए वुमेन्स ने किया है उसके बाद ये चेंजेस हुआ है इन क्लास 8th यू विल स्टडी अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो रूल्स बना इन 2006 तो 1999 से स्टार्ट हुआ इट टेक द लॉट ऑफ टाइम 5 to 6 ईयर इसको बनने में लगे तो कोई भी चेंजेस होता है दिस हैपेंस आफ्टर ए स्ट्रगल वो हमेशा एक स्ट्रगल के बाद होता है तो टुडे विल डिस्कस अबाउट कि जो वुमेन्स की सिचुएशन बेटर है देर आर लीगल राइट्स गिवन टू वुमेन एजुकेशन राइट्स है और डोमेस्टिक वायलेंस है सेक्सुअल हरेसमेंट है तो दिस राइट्स जो गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दिस हैपेंस आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल तो इन दिस टॉपिक वुमेन्स मूवमेंट टुडे विल डिस्कस अबाउट द व्हाट वर द डिफरेंट वे अर्लियर वुमेन्स स्ट्रगल्स फॉर देयर राइट्स क्या क्या तरीके वुमेन्स ने यूटिलाइज किए थे फॉर देयर प्रोटेक्शन फॉर राइट्स और फॉर देयर सेफ्टी पर्पज तो फर्स्ट एग्जांपल इज गिविंग द कैंपेन तो थ्रू द campaigning women's got the right तो campaign to fight against the discrimination and violence against violence means against the women violence na dear hello Yes, sir. violence means Yes, the sir. suppose when we beaten anyone without any reason that is the violence so domestic violence means the ये domestic violence means those fighting between the parents or like तो डोमेस्टिक वायलेंस जो भी किसी घर में होता है तो इसके अगेंस्ट भी एक्ट बना दिस हैपेंस थ्रू द ए कैंपेन स्ट्रगल्स
और गवर्नमेंट हैज पास द एक्ट इन 2006 और गिव द वुमेन हु फेस द फिजिकल मीन्स द physical harassment or mental. Many time what happens, suppose any one lady may be married from the such poor or such family, so such type of women may be the pressurized or mentally harassment by the family members. कितने हम डोरी केसेस और मे बी ऐसे केस हम स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर में रेड करते हैं कि दिस हैपन्स विद द, तो टू टाइप्स का मेंटली और फिजिकल जो वायलेंस होता है, तो अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट हैज पास द लॉ और सम लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू द वुमेन्स. तो बेटा सम लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू द वुमेन थ्रू दिस वे. तो फर्स्ट स्ट्रगल वी हैव डिस्कस अबाउट थ्रू द कैंपेन के थ्रू ही हुआ. फिर लेटर ऑन द स्ट्रगल स्टार्टेड बाय द वुमेन्स, एफर्ट मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर्मुलेट द गाइडलाइन. ये 1997 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन फॉलो की और थ्रू दिस गाइडलाइन इन 1997 आपको इसमें नोट्स बनाने हैं. 1997 टू प्रोटेक्ट द वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरेसमेंट. सेक्सुअल हरेसमेंट में कितने ऐसे आते हैं और यू आर इन क्लास 7, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू डिस्कस ऑल द थिंग्स. बट सेक्सुअल हरेसमेंट मीन्स द टॉर्चर एनीवन और सपोज हम किसी को देखते हैं, इट मीन्स द सपोज means the we can say in single word कि our treatment against the women's not a जो naturally treatment or maybe such type of habits, those may be arrest the women's. तो these are all the things are part of the sexual harassment कि किसी को gender based discrimination करना और maybe तो this government has passed the laws during the 1997 against the sexual harassment. Workplace means the where the women are working एक उस जगह और educational institutions means the educational institution mean inside schools with the girls or anything happens or sexual harassment. तो government has made the laws or very strict punishment against that. तो गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स और वुमेन, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द लॉज 1997 सेक्सुअल हरेसमेंट. एंड अनदर वन इज द इन 1984 एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक अगेंस्ट द डोरी डेथ. डोरी डेथ मींस द दहेज की बहुत सी बार देयर डिमांडेड ये डिमांड बाय देयर फैमिली मेंबर्स जो लड़के वाले होते हैं और मे बी द फ्रॉम दैट साइड such type of in case or maybe through the property जो like in different way they demand for the case or like, so this is known as the dowry system. तो 1980 women also start the struggle against that dowry death. Cases of young or murdered by their in-law husband or family members इनके द्वारा किसी को भी जला देना और dowry system और ऐसे cases में जो आप एड में स्टडी करोगे, तो this cases women has started the struggle against or women group spoke out against the failure of bring this case of justice or after a long struggles government has passed the laws on dowry system. तो इस पे भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाया. तो 2-3 ways we have discussed. One is the campaign through the sexual harassment के अगेंस्ट बना, ओके, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बना जो वुमेन को प्रोटेक्शन मिला. थर्ड वन अगेंस्ट द लॉज बना डोरी सिस्टम के अगेंस्ट. और रेजिंग द अवेयरनेस, अब लोगों में कैसे वुमेन्स में अवेयरनेस पैदा करनी है कि दे नो देयर राइट्स, उनको अपने राइट. तो देयर आर डिफरेंट वेज. एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट वर्क द रेस पब्लिक अवेयरनेस. कि आप जितने ज्यादा पब्लिक की अवेयरनेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे कि दिस इज गोइंग ऑन इन सोसाइटी, तो पब्लिक में भी सपोर्ट और गवर्नमेंट विल फोकस ऑन दैट. गवर्नमेंट को क्या करेगा, फोकस करना पड़ेगा उस इश्यूज पे. तो on that issues government can make the laws. That's why the campaign, rallies और such struggles are required. ऐसे कितने struggles होते हैं, तो ऐसे struggles से तो this struggles may be started through the poster making भी बना सकते हैं. जैसे बच्चों को दिया कि डोरी सिस्टम पे पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशंस, थ्रू दिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स और मे बी थ्रू द सॉन्ग. कभी कभी सॉन्ग के थ्रू भी दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस ऑफ गर्ल्स. और स्ट्रीट प्ले, जैसे कि बहुत बार स्ट्रीट प्ले होते हैं रोड पे, इन पे हमने स्कूल में भी दिस सच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस और में भी प्ले करवाते हैं स्ट्रीट प्ले. थ्रू दिस वी कैन गिव द मैसेज टू द सोसाइटी, यानी हम सोसाइटी को एक मैसेज दे सके जैसे डोरी सिस्टम के अगेंस्ट, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट. तो दिस आर द वे ऑफ स्ट्रगल.
जैसे स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग है, पब्लिक मीटिंग करके वी कैन डिस्कस ऑन डेट इश्यूज, उस इश्यूज पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, मेनी टाइम रैलीज निकाली जाती है कि किसी के साथ कुछ गलत भी होता है तो वी कैन प्रोटेक्ट। अब जैसे कि यू कैन टेक द लेटेस्ट एग्जांपल फ्रॉम द महाराष्ट्र में कंगना रनावत के साथ जो हुआ, यू नो, तो पब्लिक स्टार्टेड द प्रोटेक्शन, कितना रैलीज निकली और इस टाइप से। तो दिस इज द वे टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। किसी भी इनजस्टिस किसी जगह होता है तो फ्यू पिक्चर्स आर गिवन इन योर बुक, पिक्चर दे रखे कि थ्रू द म्यूजिक सॉन्ग, इसके थ्रू दे कैन स्प्रेड देयर आइडियाज। जैसे रैलीज निकाली जा रही है तो प्रोटेस्टिंग द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट द वायलेशन। जो भी वायलेशन वुमेन्स के इनके अगेंस्ट होता है तो वो हमेशा आवाज उठाती है, स्ट्रगल करती है। और अनदर वन वे इज द पब्लिक रैलीज होती है जिसमें पोस्टर्स बना लिए जाते हैं, पब्लिक रैलीज होती है कि स्टॉप द डोरी और मे बी सच टाइप ऑफ कोई भी इश्यूज हो सोसाइटी के अंदर, उसके अगेंस्ट जिस पे भी इश्यूज बनाओगे आप, जो भी इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं या मे बी द रैलीज निकाली जा रही तो दे कैन रिटर्न सच टॉपिक्स और मे बी द स्लोगन्स ऑन द बोर्ड और दे मे बी स्टार्ट द रैलीज टू फोकस द गवर्नमेंट और पब्लिक का फोकस करने के लिए और ध्यान। तो मीडिया विल रेज द सच इश्यूज इनसाइड द न्यूज। वो इश्यूज न्यूज के अंदर आएंगे बेटा, और जब न्यूज में आएंगे तो इट विल बी डिस्कस एंटायर नेशन, पूरे नेशन में डिस्कस होंगे। और गवर्नमेंट को लगेगा कि वी मस्ट बी मेक द लॉज ऑन डेट, फिर गवर्नमेंट एक कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, कमेटी विल बी डिस्कस टू द डिफरेंट एसोसिएशन और वुमेन्स, लेटर ऑन लीगल अथॉरिटी बैठती है और दे कैन मेक द दे मे बी मेक द लॉज, और लॉज विल बी गोन इनसाइड द पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में भी पास इट तो अगेन राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा विल पास इट तो प्रेसिडेंट विल साइन इट और लेटर ऑन नया एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, लीगल राइट्स मिल जाता है किसी भी सोसाइटी, एसोसिएशन और इसको। तो दिस इज द वे टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। अनदर वे जो है इट इज द यूनिटी, सोलिडरिटी मीन्स द वुमेन्स मूवमेंट इज आल्सो अबाउट द शोइंग सोलिडरिटी विद द वुमेन्स एंड पर्जन्स, कि कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस और कुछ भी होता है तो दे में भी स्टार्ट द स्ट्रगल्स विद ए यूनिटी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से। कितने ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं जो वुमेन्स को इनको इकोनॉमिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे इंडिया में बने हुए हैं जो प्रोटेक्ट सच प्रैक्टिसेस, कुछ भी इस टाइप की किसी के साथ गलत होता है तो वो एसोसिएशन उनको सपोर्ट करते हैं। तो दिस आर द वे वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ दे प्रोटेक्ट देयर सेल्फ। तो दिस आर डिफरेंट वे ऑफ ए वुमेन्स स्ट्रगल डियर, दोज वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ दे स्टार्ट रैलीज, ऑर्गेनाइजेशंस, मीटिंग, स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग के थ्रू, पोस्टर मेकिंग लाइक डिबेट्स मे बी। तो these are the way to protect the women. So when laws make, so there are 2 or 3 laws are given in your book with the sexual harassment से related, dowry system to related that is not given, and domestic violence to related. So you to protect the such domestic violence, you can see the earlier time there was the one ad on TV पे इन पे एड आते हैं कि अगर किसी भी घर पे आपको लग रहा है डोमेस्टिक वायलेंस इज गोइंग ऑन, चल रहा है, तो यू मे बी लॉक द गेट और यू मे बी नॉक द गेट और मे बी द डोर बेल, उसको बजा सकते हो आप। ओके, तो आपने ऐसे एड भी देखे होंगे कि जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है और कोई बेल बजाता है तो मे बी दे मे बी डिस्टर्ब और दे मे बी स्टॉप द सब डोमेस्टिक वायलेंस, या यू कैन इन्फॉर्म टू द पुलिस और मे बी द सच ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस आर द वे टू फाइट अगेंस्ट द स्ट्रगल। So dear, we have completed our chapter with these topics, or today I am giving 5 to 10 minutes. If you have any doubt, we can discuss, or tomorrow onwards we will start the new chapter, that is air from your geography book. Okay, or after air we will start the history book. So our next chapter start from tomorrow onwards. Today we have completed that. So what will be the syllabus for weekly test? Before completing the educations, they left their schools. First reason, no proper transport facilities may be available on that areas. कि बहुत सी जगह ऐसा है कि रिमोट एरिया है, नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और नो सच हायर स्कूल और हायर एजुकेशन अवेलेबल. सेकंड, ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. थर्ड, ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन
by classmate or society or teachers. Okay. Fourth reason, sometimes this situation may become due to the cost of education, many parents they are unable to afford the such cost. So in such situation, they give the first priority to the boys. वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में फिर बॉयज को देते हैं. तो थ्रू दिस आर द 4 रीजन, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट द स्कूल्स. ओके, तो दिस क्वेश्चन आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव. ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या रीजंस रहे कि व्हाई दे लीव द स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग द एजुकेशन अर्ली इन ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम, नॉट टुडे. टुडे ऑल आर गुड, यू आर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन. Today's parents are aware about their children. आज के पेरेंट बहुत ज्यादा चिंता करते हैं बच्चों की. They are too much aware about the children. They are completing the higher education. आज के जो पेरेंट्स है न लिटिल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है. वो there is the no discrimination between the boys and girls in today's society. और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता. तो डे बाय डे सिचुएशन इज चेंजिंग. दिनों दिन सिचुएशन बेटा चेंज हो रही है. You are getting the lot of rights. Without rights, your parents are giving the lot of facilities for you. आपके पेरेंट्स आपको बिना किसी राइट्स के बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं. आई होप मुझे किसी फैमिली या किसी बच्चा है कोई ऐसा नहीं है जहाँ दे कैन फील द डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम. पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं. उनके लिए सब बच्चे के. जेंडर इज नॉट अ प्ले एनी रोल. जेंडर का कोई रोल नहीं होता है. टुडे सोसाइटी में तो ये मानता हूँ कि इन टुडे सोसाइटी गर्ल्स आर बेटर देन द बॉयज. मैं नहीं कह रहा बॉयज बेकार है या अच्छे नहीं है, बट दे आर बेटर. अगर दोनों को कंपेयर करें तो गर्ल्स आर बेटर देन द बॉयज. व्हाई? फर्स्ट, पोलाइट नेचर, जस्ट टेक केयर अबाउट देयर पेरेंट्स. Sometime what happens, maybe the boy or such situation, they are earning sources or maybe they busy in their life. But girls always worried about their parents. So this is my personal feeling. Or what about your parents? I don't know about it. But today's society, there is no such discrimination between the boys and girls in our society. What about the remote area? I hope थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन अभी भी वहाँ होता है. बट यू नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है इन सोसाइटीज में. सोसाइटी में यू कैन स्टडी द न्यूज़पेपर जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बर्थ प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होता है. ओके, तो दिस समटाइम व्हाट हैपन, इश्यूज कुछ होते हैं और उसको जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लेके आ जाती है सोसाइटी. अब यू नो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अगर हम एग्जाम्पल स्टडी करें तो डेट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड कंगना, और मे बी द सुशांत केस से रिलेटेड डिस्प्यूट था और बिहार गवर्नमेंट का. अननेसेसरी उस केस को लेके आए कंगना और कंगना को इश्यूज बना दिया यू नो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन केसेस को. इसको तो बहुत सी बार केस क्या होता है, इश्यूज क्या बना दिया जाता है. समटाइम दिस हैपेंस कि कभी कभी किस केस को किसकी हवा दे दी जाती है. तो बट आई होप हमारी सोसाइटी गर्ल्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है और इन फ्यूचर्स योर सिचुएशन विल बी बेटर. तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस चैप्टर कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ गर्ल्स अर्लियर टाइम, हाउ दिस सिचुएशन इज चेंजिंग, और व्हाट आर द एफर्ट्स डन बाय द वुमेन्स फॉर दिस सिचुएशन. जो आज का टाइम में जो चेंजेज हुआ है उसके लिए व्हाट इज द रोल प्ले बाय द वुमेन्स, और इन दिस वे किस वे में उसने रोल प्ले किया है. Like through the campaign, through the rallies, through the struggles, through the song, through the street play. कितने ऐसे करते हैं. ऐसा नहीं only girls are playing in that. Many boys they are supporting to them in schools. There are many children who play the such street play. Through this we can give the message to the society कि protect the. ऐसे कितने केसेज आप देख सकते हो बेटा. जैसे कि इन हरियाणा मोस्टली देयर इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स. That's why हरियाणा के अंदर सबसे कम जेंडर रेशो है. बिहाइंड 1000 मेल 870 अप्रोक्सीमेटली फीमेल पॉपुलेशन है. तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ अर्ली टाइम डिस्क्रिमिनेशन होता था बिफोर बर्थ. यू नो आई कांट एक्सप्लेन माय व्यूज, बट बिफोर बर्थ ही वहाँ पे कितने ऐसे सीरियल्स बने जो उस पर फोकस किया गया कि लाइक दिस नाना इस देश में लाडो, लाइक दिस, कि इसमें कितना डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटीज में होता है.
बट गवर्नमेंट हैज मेक द लॉज कि बहुत सी जगह लिखा होता है व्हेन यू विजिट द हॉस्पिटल कि जेंडर चेकिंग और मे बी द यहाँ पे वो नहीं किया जाता और सच टाइप ऑफ पनिशमेंट मे बी इन सच केसेस अगर जेंडर चेकिंग और कुछ भी किया जाता है। अब जो दिस इज द तेज पुल पे क्या? So, dear, if you have done any doubt, you may be asked. Later on Monday, tomorrow onward, not a Monday. Tomorrow onwards, we'll start the